Good pick for Rohit Sharma. And who do you think will lead 2027? Who do I think will lead in 2027? Well, Shubman Gill ko you've made. I don't know what is going to happen after the Champions Trophy. We've been reading a lot of reports about Rohit having to talk about his future and all of that. So, but 2027 is a long time away, and I think vice captain abhi Shubman ko banaya hai. So between Shubman or Hardik Pandya. If Rohit Sharma does not play cricket till then I think it'll be between Shubman or Hardik. These are the next picks. But मतलब अभी एक तो इतना ODI है नहीं, and अभी शुभमन को अभी वाइस कैप्टन बना दिया. So then you know what the team is thinking. And the others are fairly new in the team. And so I think. Who do you think अभी एकदम class कौन है next? Like who's on the way to just अभी मतलब नया Because Shubman is not that नया, वो हम पिछले 2-3 साल से बात कर रहे हैं. अभी T20s में most excited about Abhishek. Super excited about him. And across formats, Jaiswal. These names are like always there. Because now he's gone to Australia and shown you first tour to Australia. यार किसी age group में भी नहीं गया था बंदा. उन conditions में कभी नहीं खेला. And just how quickly he learns from his mistakes. He's got the gears for all games, and most importantly, that fire is burning within. That fire is burning. He's gone. If 10 years later, Yashasvi Jaiswal is not counted amongst this generation ke contemporaries mein, I don't want to say it too early, he would have disappointed himself if he doesn't finish as one of the best of this decade. The coming 10 years. You have this much conviction on him. Thanks. The ball's in his court. Yeah, whatever little. That fire is burning and he's... है मतलब और है plan जैसे कि मैं उसी level पे drive और फोड़ने जाऊँगा. Seen the bit of his work ethic and all of that. Phenomenal. Who do you think should join you? मतलब कि एक cricketer या ex cricketer या current cricketer. Who do you think your cricket retire होने के बाद commentary में आना चाहिए? आएंगे नहीं यार. महेंद्र सिंह धोनी. Why? Oh man, can you imagine MS Dhoni being... Because he'll probably bring a perspective जो इतना अलग है और इतना fresh है. And I'm saying मतलब see, obviously you'd want someone like Virat Kohli or Rohit Sharma and all to come, और उनके मैंने बड़े interviews करे. Right? उनके mindset को बड़े अच्छे से जानता हूँ. MS is still, I've done a lot of interviews, but उतना एक्सेस नहीं मिला है मेरे को जितना इन दोनों के साथ मिला है. सो आई थिंक MS, आई मीन द ऑरा दैट ही कैरीज, बी द अचीवमेंट्स दैट he's had, एंड सी उस बंदे का पर्सपेक्टिव उनका लाइफ पे बड़ा अलग है. यू नो एवरीवन जस्ट थिंक्स मास्टरमाइंड एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट MS has just done the basics so well. एक क्रिकेट की जो मतलब परसेंटेज क्रिकेट जो होता है कि ये चीज़ यहाँ उल जलूल अतरंगी करने के बजाय बेसिक करो. उन्होंने बेसिक्स बहुत अच्छे किए. राइट? जैसे उनका वो एग्जांपल है कि 6 छक्के मत खाओ यार, 6 चौके खा लो, रन बचते. सिंप्लीफाइंग इट. ही सिंप्लीफाइज सो मेनी थिंग्स, एंड दैट्स व्हाट एवरीवन लव्ड अबाउट हिम बीइंग द कैप्टन, बिकॉज ही गेव यू एन एडवाइस व्हिच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो उनका जो पर्सपेक्टिव होगा ना बैठ के, वेदर इट्स द ऑडियंस, वेदर इट्स यू, उनका पर्सपेक्टिव कॉमेंट्री में एक इतना अलग आएगा जैसे वो सोचते थे. सो ओह मैन, इट वुड, what a dream it would be. Tell me 2-3 incidents जहाँ आपको लगा कि यार ये अलग सोचते हैं. Maybe from the game or maybe from the conversation जो आपने बात करी उनमें से. सबसे पहले, I mean, just how he was never confined or never scared of anything or anyone. मैं 2010 T20 World Cup में एज ए रिपोर्टर गया था, और मेरे को कहा था कि टीम आएगी सेंट लूसिया, तो सबका इंटरव्यू करना है. तो परमिशन थी मेरे पास एंड ऑल दैट, बट बड़ी लंबी जर्नी थी और बड़ी थकी हुई बस में टीम आई थी, ऊपर नीचे खबर, पहले इतनी लंबी फ्लाइट. तो वहाँ सब उतर रहे हैं और सारे मना कर रहे हैं, वो मैनेजर मना कर रहे हैं, दिस एंड दैट. मैं बड़ी टेंशन में खड़ा था. एंड टीम के बाद चेक इन हो रहे थे, एंड आई महेंद्र सिंह धोनी, एंड आई वॉज अराउंड देयर ओनली सिटिंग जस्ट फ्रैजल्ड एंड ऑल ऑफ दैट. सो ही वाज वेटिंग, बाकी सब अपने कमरे ले रहे थे, ही वाज वेटिंग, एंड ही जस्ट सेड क्या हो गया. साला मैं इंटरव्यू करना था, दिस एंड दैट. He's like, पता है कितना लंबा रास्ता था and how tired you are. I was like, yeah, I know, but I was young at that time, यार. Put his arm around my neck and said, बोलियो माही ने मना कर दिया कि पूरी टीम का कोई इंटरव्यू नहीं करेगा अभी, because everyone, nothing against you, put it on me. He just took it, like, just say I said so.
You know, this is a big ICC tournament or something, but he had seen his whole team had traveled in a way that they were so tired, and it was a very uncomfortable journey. And just the very fact that he sort of cared, okay, what am I here for, and all of that, just took it. Then I'd done his interview जब वो 2018 में जीते. I asked him, boss, ट्रॉफी जब जीतते हो तो आप साइड में छुप जाते हो, फोटो में दिखते ही नहीं. So he said, don't you think it's unfair कि टॉस में कैप्टन आता है, प्रेजेंटेशन में कैप्टन आता है, कैमरा सारा टाइम कैप्टन पे होता है, सो इतनी लाइमलाइट तो वैसे ही मिल जाती है. डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर कि पूरी टीम को वो लाइमलाइट नहीं मिलती? सो ट्रॉफी लेके भी मैं ही क्यों रहूँ बीच में? इट्स देयर मोमेंट. रॉबिन उत्थपा ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया था. वो बोल आउट हुआ था, उसमें कहा था सारे जो पाकिस्तान के कीपर कमरान थे, शायद कमरान अकमली थे, लाइक यू स्टैंडिंग अप टू द स्टम्प्स. एमएस ने ना 5-6 कदम पीछे अपने घुटनों पे बैठे हुए थे, जस्ट सो दैट द बॉलर्स हैव अ बेटर आइडिया ऑफ द स्टम्प्स. कीपर ऊपर होता है तो फिर उतना अच्छा आइडिया नहीं होता, वो पीछे बैठे हुए थे. स्मॉल थिंग्स, जस्ट हाउ ही लुक्स एट ऑल दीज एंगल्स. मुझे बॉल डालना स्टंप पे, बस मुझे बॉल डालना स्टंप पे लगेगी. एग्जैक्ट. कितनी रील्स सोशल मीडिया पे चलती हैं कि जहाँ पे वो डायरेक्शन दिखाते हैं, उसी डायरेक्शन पे आती वही आउट होता है एग्जैक्ट उस मोमेंट पे. रीडिंग द गेम, नो, अहेड ऑफ द गेम. बट जब किसी को समझाना होता है तो लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं. एंड दैट्स द थिंग यार. आप जीनियस हो सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी जीनियस किसी को समझा ही नहीं सकते. जीनियस लोग बड़े मुश्किल से अपनी जीनियस नहीं समझा सकते, तभी वो जीनियस है. लेकिन अगर एक जीनियस तरीका ढूंढ ले सिंप्लीफाई करने का, ये लो, ये कुंजी है तुम्हारी, समझ लो, तुम्हारी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ. सो ही डिड दैट वेरी वेल. आई एम अ बिग माही फैन. Who's we not? all are. Yeah. But like in my list of all the cricketers, with all due respect, like he comes at let's just say put it at the top. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. नंबर 1, इस चैनल को इसी टाइम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करते हो उतनी हमें हेल्प होती है कि हम और बेहतर और बड़े गेस्ट लेके आएँ आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यू डिलीवर कर पाएँ. नंबर 2, मुझे अभी कमेंट्स में बताओ कि कौन से ऐसे और गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, ताकि हम उन कमेंट्स को पढ़ के वैसे गेस्ट, वैसे क्वेश्चंस पूछें, वैसे टाइप के टॉपिक्स लेके आएँ आपके लिए. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उसे इस एपिसोड से कुछ नया सीखने को या जानने को मिले, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज़ इनफ to actually know something really insightful जो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प कर सकता है. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.